بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها دخلت علي أبي رسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة. قلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا فتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. قلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء صلوات الله. اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء صلى الله عليه وسلم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال أمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلى الله عليه وسلم. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط أمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلى الله عليه وسلم. وقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. قال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات الله. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموما إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم. نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد. صلوات اللهم صل على محمد. नाम पर शान के पानी जो पिला देते हैं मेरे को संग मुझे होता है शेख करते हैं शुक्र सब्र अय्यूब का शाफी अय्यूब का शाफी माँ कहती है दुनिया में ये आबाद रहे शेख अबू सामने
मुझे सब ये अदाए सज्जाद गर्दों से हो जाती है बादशिया पाकीज़ा पाकीज़ा शबीर को करता है जैसे बस प्यासे पर मिला ना कोई यार ना गमखार आज़म मिला किसी को नशीना सा देखा देखा प्यासे ने जिसे कौन का प्यासा देगा प्यासे ने जिसे कौन का प्यासा देगा क्या प्यास में रोज़न कलाम अय्युहन्नास मेरे कत्ल पथ है चुना उसा प्यासे की शबरोज के काम तमाम की शबरोज के काम तमाम अब प्यासों में बाकी नहीं मैं तन्हा हूँ शाबानी तो मुझे जाना प्यासा शाबानी तो मुझे जाना प्यासा अभी ले जवान टूट पड़े दिल बगान सब कमादारों के जीरो दिल शबीर दा जल्ला कर बीच में जरा जल्ला कर बीच में जरा जल्ला कर बीच में जरा घोड़े से साथी बहुत बड़ा शुक्र नहीं घोड़े से बहुत बड़ा शुक्र नहीं घोड़े से आया मुझसे परेशान के वो बदतर तेरे हाथ में घात में हर बेअदब चाह के चढ़े सीने पर शाजू कैसे बोले के शुक्र है शाजू कैसे बोले के शुक्र है दुनिया में मेरे बाद तुझे रहना है तुझसे कुछ अपने अतीमों के लिए कहना है अपने अतीमों के लिए कहना है कह तो तू आगे अमर उस
या कि न कर शिमर बोला के भला खैर कहो सर्वर कहा शहर मेरी गर्दन पा चले जब खंजर शिमरोला गिरा देना उड़ा का शिमरोला गिरा देना उड़ा का चारा और इतना तू मेरी रो पैसा करना देख सजानियों के सर को नौरिया करना सजानियों के सर को नौरिया करना उनकी संतान से क्या जलाने से क्या आप ही रोते हैं के रुलाने से क्या नंगे सर नशीलों के पिलाने से क्या नशीलों के पिलाने से क्या नशीलों के पिलाने से क्या नबी के उन्हें पहुंचा देना बिठा देना सके लाश बिठा देना तीन बरस की सकीना मेरिया तू उसको तमाचे ना वो जो रोएगा रखना ना डराना लिल्ला मैंने नालों से पाला है खाले के गवाह मैंने नालों से पाला है खाले के गवाह नालों से पाला है खाले के गवाह बलथी मेरे सीने क्यों सोने वाली अब साहिब माता मेरे होने वाले साहिब माता मेरे होने वाले शिवरी बोला ये सकीना तुम जाते हो शहन फरमाया कि आंख में प्यारी मुझको संग दिल बोला तो बस खैर तुम अब कुछ ना कहो मैं नहीं सुनता सकीना की सिफारिश ना करो मैं नहीं सुनता सकीना की सिफारिश ना करो तमाचे मैं नहीं सुनता सकीना की सिफारिश न करो मैं तमाचे उसे मारूंगा बुरा भी दूंगा दीदी जाएगी सब ऐसे बनूंगा दीदी जाएगी सब ऐसे बनूंगा दीदी जाएगी सब ऐसे बनूंगा आज शब आशूर है आज खैर में दीदियां खैर मना रही कल सुबह होते ही पहले हम पर क्या गुजरेगी कोशिश कर रहा हूँ
ताब तो नहीं है पढ़ने की, कोशिश कर रहा हूँ शब आशूर का कुछ मंजर आपके सामने पेश कर सकूं। नारे सलवात पढ़ते हैं। शब आशूर से कहती थी ये रो कर, ए रात न ढलना, ए रात न ढलना, लुट जाएगा परदेस में, रात मेरे हाल पे कुछ तू ही तरस खा, उम्मत ने किया जुल्म मगर तू गिर जा, ऐसा मुसीबत की घड़ी आले नबी पर, ए रात न ढलना, अरे कल सुबह के आमद के तस्वुर से हूँ बेचैन है गर तू तो यहाँ पर है किसे चैन, आ देख मेरे साथ जरा ख़ैमों के अंदर, ऐ रात न ढलना, ऐ रात न ढलना। जनाब कासिम के हवाले से बतौर खास ये बंद पेश कर रहा हूँ कि हुजरा है और उसी का मगर हाय रे किस्मत है कासिम कुबरा पे बरसती हुई गुर्बत, कल को है सितम टूटेगा एक शब की दुल्हन पर, ऐ रात न ढलना, ऐ रात न ढलना, कल सुबह के होते ही उजड़ जाएगी दुनिया, अरमानों से लबरेज छलक जाएगा सीना, अरमानों से लबरेज छलक जाएगा सीना, अरे नेज़े की पानी ढूंढना ले सीने अकबर, रात न ढलना, रात न ढलना, लाऊंगी दुल्हन चाँद सी तेरे लिए बेटा, अकबर की
तरफ देख के कहती है ये लैला, कलमा दरे अकबर को संभालूं कि मैं क्यों कर, ऐ रात न ढलना, ऐ रात न ढलना। रोज़गार इस पुस्तक को कबूल फरमाए। हमारी रात जहाँ जानी है ज़रान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रोज़गार को तेरी सईदा सलामुल्लाह अलैहा की दुआओं के साए में रखे। जहाँ जहाँ भी अज़ादारी हो रही है रोज़गार तमाम अज़ादारों को सलामत रख, और जो जिस तरह से भी अज़ादारी में हिस्सा ले रहे हैं रोज़गार उनकी तौफीक़ात अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ भी अज़ादार हैं दुश्मनों के शर से उन्हें महफूज फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में आखिरी दुआ ये है कि आज़ादारी के वारिस मुंतकिम खून हुसैन वारिस करबला के ज़रूर में तर्जीह अता फरमा, ताकि हम उनके साथ आज़ादारी मना सकें। आइए हज़रात बस अगर गुजारिश करूँ अली जनाब मौलाना सैयद आसिफ फिर भी सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي القاسم. اللهم صل على وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على शब आशूर इस कुर्सी की मजलिस में और ऑनलाइन शरीक तमाम मोमिनीन जहाँ कहीं भी इस वक्त मजलिस में शरीक है, आपकी सबकी खिदमत में और आपकी जानिब से बारगाहे हज़रत हुज्जत में कुर्सा पेश करता हूँ। क्योंकि रात बल्कि वो कह लो अभी शाम हुई है ना, ये शाम शहीदा है। आज की शाम शाम शहीदा कहलाती है, लेकिन कल का जब सूरज ढलेगा और शाम आएगी तो वो शाम गरीबा होगा। आज ये शाम शाम शहीदा है, लेकिन कल शाम गरीबा आएगी। आज हर शहीद अपने वारिस के पास है, लेकिन कल की रात जब आएगी तो जब क़यामत की रात होगी। अजीजों, ये रात हुसैन इब्न अली ने इबादत के लिए भी तलब की थी, लेकिन दुनिया के लिए तो इबादत की रात जरूर थी, लेकिन हुसैन ने ये रात एक मखसूस मेहमान के इंतजार में भी थी। ये रात किसी आने वाले मेहमान के इंतजार में थी। वो आने वाला
जो हुसैन इब्न अली तक आना चाहता था, लेकिन वक्त और जमाने की दीवारें हायल हो रही थी। आने वाली सदियों तक पैगाम भी था कि कभी ऐसा हो सकता है कि जमाना मुखालिफ हो और हक की राह तलाश करते करते तुम्हें जमाने की वजह से कुछ पसो पेश हो, तो तुम्हें किसी और जानिब नहीं देखना है, उस मेहमान की जानिब देखना है जिसने एक ही रात में अमली तफसीर बन के अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून की अमली तफसीर बन के रात की तारीकी में फैसला लेने में चाहे जितनी ताखीर हो गई हो, लेकिन फैसला ऐसा लिया कि अज़ान सुबह अली अकबर तक आते आते ज़ुल्मात से निकल के नूर की जानिब खिंच के शायद हुसैन इब्न अली ने भी अपने लाल से अजान दिला के दुनिया को पैगाम दे दिया कि नाना की आवाज में अब भी उतनी कशिश है कि अगर कोई ज़ुल्मात में घिरा हुआ है तो वो नूर की जानिब खिंच के चला है। और यकीन जाने कि पूरी रात जनाब को तरद्दुद जरूर रहा होगा और बार बार खैमे से निकल के कभी आसमान की जानिब देखता था, कभी खैमों से आती हुई आवाजों को सुनता था, अलताश अलताश, और घबरा के कहता था, बेटा ये जो आवाजें सुन रहे हो किसी और वजह से नहीं है, बल्कि मेरी वजह से ही आ रही है, मैं इनका कसूरवार हूँ। और ये कहने के बाद हुसैन इब्न अली का, और ये दायरे की शाम गरीबा, मैंने कहा ना कि ये शाम गरीबा नहीं बल्कि शाम शहीदा है। हर बीबी खैमे में अपनी अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है। इसी असना में मजलूम करबला खैमों का तलाया फिर रहे थे, खैमे से आवाज आ रही थी, बेटा तुम तो मैदान में भी जाने के काबिल नहीं, लेकिन जब सबकी कुर्बानी कल पेश हो तो तुम्हारी भी कुर्बानी किसी से कम नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। फिर थोड़ी दूर और आगे बढ़े, देखा कि खैमे से आवाज आ रही है, मेरे लाल और मोहम्मद, मुझे तुम पर बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है, लेकिन बाबू के बेटों से पहले तुम्हारी कुर्बानी होनी चाहिए। फिर और आगे बढ़े, बेवा माँ सब जा रही है, कासिम तुम्हारी कुर्बानी का मुझे बड़ा इंतजार है। हर खैमे से गुजरते हैं और यही आवाज बुलंद होती है। एक मर्तबा हुसैन के कानों में आवाज आ रही है, आज मैं किसे कल कुर्बान करूंगी। ये किसी और की आवाज नहीं थी बल्कि बहन उम्मे कुलसूम की आवाज। अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए बड़ा सख्त मरहला था ये शाम शहीदा, ये शबे आशूर। यहाँ तक कि जनाब ज़ैनब ने भी एक सवाल किया, भैया जो आए हुए असहाब हैं, चाहने वाले हैं, चूंकि असहाब को वो देख चुकी थी कि नाना के असहाब कैसे थे, बाबा के असहाब कैसे थे, भैया को जैसे असहाब मिले वो कैसे थे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने पूछा, हुसैन इन्हें आजमा लिया है, ए मेरे भाजाए इन्हें आजमा लिया है। एक मर्तबा आके जनाब मजलूम करबला ने जिस वक्त खैमे में कहा, हबीब ज़ुहैर एक सवाल ये है कि मुझे ये बार बार कह रही मेरी माँ जाई कि अगर आजमाना है तो अभी इन्हें आजमा लो, बस ये सुनना था कि एक मर्तबा हबीब आगे बढ़े, कहा जल्दी जल्दी उठो। और उठने के बाद खैमे के दरवाजे पे आके सब ने अपनी तलवारें गर्दनों पे रख दी। शहजादी, अरे इस दरवाजे पर अगर हम 70 मरतबा मारे जाए और गिराए जाए तो नुसरत हुसैन से हम पीछे ना हटेगा। हबीब ये तुम्हारा जज्बा फिदाकारी था। यहाँ तक के इमाम हुसैन ने खैमे में चिराग, जलते हुए चिराग को बुझा के भी आजमाया, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं सका। ये आजादारों, वो मंजिल भी आई कि इमाम हुसैन एक एक को उनकी मंजिल दिखाते जाते हैं। ऐ ज़ुहैर ये तुम्हारा कल मक्तल में मकाम होगा, ऐ सईद ये तुम्हारा मकाम होगा। यहाँ तक कि हिलाल इब्न नाफे कहता है कि मैं मौला के पीछे पीछे चल रहा था, इसी असना में मैंने देखा कि एक नशेब के करीब से मौला गुजरे और बड़ी तेजी से वहां से गुजर गए और एक आवाज आ रही थी, अरे मेरे लाल हुसैन। आगे बढ़कर कहता है, मौला आपने सबके मनाजिल बता दिए कि इनकी मंजिलें हैं, ये इनकी मंजिलें हैं, लेकिन यहाँ से आप बड़ी तेजी से गुजर गए। एक मर्तबा मुखातब हुए जनाब हिलाल की जानिब और फरमाते, हिलाल ये मेरी मंजिल शहादत है, इस नशेब में कल मैं घोड़े से गिरूंगा, ये आवाज मेरी दुखियारी माँ की बुलंद है।
आदादारों जमाने के इमाम को फुर्सत दीजिए, बस रवायत का फकरा पढ़ूं और आपकी रहमतें तमाम कर दूं। ये अदादारों, यहाँ तक कि ये शाम ढलते ढलते ये तेजी के साथ निस्फ शब से ज्यादा गुजर चुकी है। एक मौका ऐसा भी आया कि इमाम हुसैन आज जब इबादत के आलम में इबादत करते करते वो मौका आया कि देखा कि सुबह का सूरज अब तुलू होने वाला है और वो मंजिल आ गई, मंजिल शहादत। हर एक को मंजिलें तो दिखला ही चुके थे मौला, लेकिन मैंने कहा ना कि उस जगह पर जहाँ से तेजी के साथ नशेब से गुजरे थे ना, बार बार उस जगह जाते थे और देख के आ जाते थे, बार बार सुबह मौसम पे जाते थे और देख के आ जाते थे। यहाँ तक कि दोपहर में असर आशूर आ गई। अदादारों, नमाज तमाम करने के बाद भी उस मंजिल शहादत पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, क्योंकि मालूम था कि ये वही जगह है कि कल जब पुश्त फरज से जमीन पर आऊंगा तो एक मर्तबा आवाज गूंजेगी कि मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ बहरे अलकमा, मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़े करबला, मेरा बच्चा है बेगुनाह। आवाज ये ऐसी थी, ये आवाज ऐसी थी मक्तल में कि असर आशूर कहते हैं, तमाम मकातिल लिखते हैं कि जिस वक्त हुसैन जमीन करबला पे आए, बस एक रवायत और मजलिस तमाम है, जिस वक्त हुसैन इब्ने अली जमीन करबला पे आए तो आलम ये था कि घोड़े से जमीन पे आए तो जिसके लिए खुद ज़ियारत नाहिया में हमारे ज़माने का इमाम तो मर्सिया में क्या है, ज़ियारत नाहिया जो मर्सिया है ज़माने के इमाम का, फरमाते हैं मेरा सलाम हो जद्दे मजलूम पर जिनका जसद मुबारक न घोड़े की ज़ीन पर था न ज़मीन पर। मजलूम करबला के लिए क्या है, कहा कहा जहाँ जसद न घोड़े की ज़ीन पर था न ज़मीन पर था। हालांकि मक्तल ये कहता है कि जिस वक्त हुसैन ज़मीन करबला पे आ गए तो एक मर्तबा रहवार ने आगे बढ़ के चाहा कि सहारा दे और बार बार अपनी बागें जो है हुसैन के हाथ में रख दी। मक्तल का जुमला ये है कि शायद चाहता ये था कि सवार दोष रसूल एक मर्तबा फिर मुझ पर सवार हो जाए तो मैं फौजों से दूर लेके चला जाऊं। बार बार गुलजना आता था और रिकाबे बागे रखने के बाद उसने सोचा कि शायद हुसैन दोबारा सवार हो जाए, लेकिन मक्तल ये कहता है जब घोड़ा आदि आ गया सुलझना को ये पता चल गया कि हुसैन अब दोबारा सवार नहीं हो सकते। एक मर्तबा खैमे का रुख किया और खैमे का रुख ही नहीं किया बल्कि पेशानी खून से खैमे के दरवाजे पर होना तो ये चाहिए था कि कोई बीवी निकल के आती, लेकिन अब मक्तल कहता है कि कोई बीवी तो ना आई लेकिन कम से सकीना खैमे के बाबा के घोड़े मेरे बाबा को छोड़ा कितना बता दे। अरे मेरे बाबा अरे बहुत प्यासा था उसे किसी ने आए मेरा तुम्हारे आशे कातिल हो सवार व हुसैना रागिब दोष शाह लौलाद रागिब दोष शाह लौलाद भाई दो बेकार व हुसैना खुसरव मुशगीर सद खुसरव
गोशगीर सद है, एक तन तेरा लाख तीर सद है, एक तन तेरा लाख तीर सद है, घोड़ों के समान वो जिसमें सद चार, मैं तेरे निसार हुसैना, ऐ राकीब दोस्त शाह औलाद, ऐ राकीब दोस्त शाह औलाद, वाहिदो वेगार व हुसैना, बेटी तेरी तमाचे खाए, तमाचे खाए, बेटा तेरा है क्या की बेगार हुसैना, ऐ राकीब दोस्त शाह औलाद, ऐ राकीब दोस्त शाह औलाद, वाहिदो बेगार हुसैना, दरियाए नजफ शेर अज़ानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, दरियाए नजफ शेर अज़ानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, शानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, मैदानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, 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 शेर अज़ानी, शेर अज़ानी, शेर अज़ानी, शेर अज़ानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, खुदा पहचानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, दरियाए नजफ शेर अज़ानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, शुदा मैदानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, ऐ दरियाए नजफ शेर अज़ानी, शेर अज़ानी, शेर अज़ानी, शेर अज़ानी, या अब्बास या सैयदी, या
शाबाश या सैयदी 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 आशूर की शब है हाशिर बापा मासूम सकीना सो जाओ आशूर की शब है हाशिर बापा मासूम सकीना सो जाओ
आशूर की शब है अशरफ मासूम सकीना सो जाओ रो के ना मुझको तड़पाओ ऐ वाली सकीना सो जाओ आशूर की शब है अशरफ मासूम सकीना सो जाओ रोके ना मुझको तड़पाओ ऐ वाली सकीना सो जाओ आशूर है अशरफ मासूम सकीना सो जाओ आशूर की शब है अशरफ सकीना सो जाओ आशूर की शब है अशरफ मासूम सकीना सो जाओ आंखों से रोती है कोई मैदान में रोती है कोई आंखों से रोती है कोई मैदान में रोती है कोई ये गिरियाए ज़हरा ये सदा ये गिरियाए ज़हरा ये सदा मासूम सकीना सो जाओ आशूर की शब है अशरफ मासूम सकीना सो जाओ आगोश में बादल खेले तो और बाप के सीने को भूलो आगोश में मादर खेले तो और बाप के सीने को भूलो करते हैं इबादत चाहे होता करते हैं इबादत चाहे होता मासूम सकीना सो जाओ आशूर की शब है अशरफ मासूम सकीना सो जाओ कल कोई ना होगा है बीबी अंसार है बाहर अब सब ही कल कोई ना होगा रे बीबी अंसार है बाहर अब सब ही लेते हैं तलाया आज सदा लेते हैं तलाया आज सदा मासूम सकीना सो जाओ आशूर की शब है अशरफ सरवर की शहादत कल होगी सब अहले हरम होंगे कैदे सरवर की शहादत कल होगी सब अहले हरम होंगे कैदी कल से न मिलेगा चैन जरा कल से न मिलेगा चैन जरा मासूम सकीना सो जाओ आशूर की शब है अशरफ मासूम सकीना सो जाओ बस एक रात का मेहमान है हुसैन 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 बस एक रात का मेहमान है हुसैन
उसके बाद सवेरा है। वतन से दूर मुझे खुफियों ने घेरा है। 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 बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन। शेर दिलावर बिछड़ने वाला है। शेर दिलावर बिछड़ने वाला है। सफीने का लंगर बिछड़ने वाला है। बिछड़ने वाला है। उससे मेरा बरादर बिछड़ने वाला है। 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 बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन। आपकी सर का जनाजा मैं कल उठाऊंगा। जनाजा मैं कल उठाऊंगा। आपकी सर का जनाजा मैं कल उठाऊंगा। सर का जनाजा मैं कल उठाऊंगा। से ज़ईफ़ी में लड़खड़ाऊंगा। से ज़ईफ़ी में लड़खड़ाऊंगा। मैं अम्मा तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें बुलाऊंगा। मैं अम्मा तुम्हें बुलाऊंगा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन। सकीना को सीने से तुम लगा लेना। 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 जो नाक से अम्मा उसे उठा लेना। जो नाक से अम्मा उसे उठा लेना। से अम्मा उसे उठा लेना। से अम्मा उसे उठा लेना। दंगलों के तमाचों से तुम बचा 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 लेना। बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन। चांद को घेरेंगे शाम के हाले। चांद को घेरेंगे शाम के हाले। बदन पे लगाएंगे जुल्म के भाले। बदन पे लगाएंगे जुल्म के भाले। पे टूट पड़ेंगे ये बर्छियों वाले। 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 बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन अम्मा। बस एक रात का मेहमान है हुसैन। शाह सलामुन अलैक। 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 शाह सलामुन अलैक।
या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या ख़ातिमुन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या अफ़ज़लुल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका इमामुल हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका इमामुल ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलामु अलैका इमाम मुहम्मद बाक़िर, अस्सलामु अलैका इमाम जाफ़र, अस्सलामु अलैकुम जमी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम मौला या अमीरुल मोमिनीन व सय्यिदुल मुरसलीन व अली इब्न अबी। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका अला औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका इमाम मुस्लिम, अस्सलामु अलैका इमाम तक़ी अली जवाद, अस्सलामु अलैका इमाम अली नसीब, अस्सलामु अलैका इमाम हसन अशकरी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम वलिय्युल वफ़ाइ वल फुक़रा, अस्सलामु अलैकुम मुशफ़िय्यति व दुआरिफ़ी व मिजला, अस्सलामु अलैका या शम्स शुहूद व आलिकल नुफूस, अय्युहल मदफून बिमर्ज़ दूर, अस्सलामु अलैका या अय्युहस सुल्तान या अबल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम मौला या साहिबल अस्र वल ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीफुल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामुल मुस्लिमीन। अजलल्लाहु तआला फरजक अल्लाहु तआला फरजक व जअलना मिन अंसारिही व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।